Okay, good morning. There is one person by the name Reconnecting. Reconnecting नाम से कोई एक है यार, वो नाम चेंज कर लो. It wasn't a message actually. Reconnecting message नहीं था, वो किसी ने नाम ही रखा था. ठीक है. The person has left the group now, it seems. We'll just wait for 2 more minutes and then we will start. I think this is important class, so let me wait for 2 more minutes. Okay, so let us start. Now today what we are going to do, we will try to understand few techniques which will help us in the passages which are very difficult, sort of, right? So when you find a passage difficult, you may deploy these strategies. I will like that in the next test you actually deploy these strategies. We will discuss that later on. Frankly speaking, do did I ever use such techniques when I was a student? No, I did not, because of the simple reason that there was nobody to tell me. ठीक है, तो क्या मैंने ऐसे किया? मैंने ऐसे नहीं किया, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई बताता तो मैं जो चीज शायद 2 साल में सीखा या 1 साल में सीखा, that may be that might have been in 6 months or maybe half the time. So not necessary that we always need techniques to solve the question. You can solve it any which way, but maybe techniques help us to be more effective when we solve the questions. And in certain cases, students to whom I have taught these things, they have reported that their accuracy has improved. Now from this class onwards, next 4 or 5 classes will be combined for the for the critical reasoning and RC. ठीक है, और अगर आप 5-6 क्लासेस अगली रेगुलरली अटेंड करते हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. दैट आई एम श्योर अबाउट. ठीक है, ऑल्दो मुझे वो किसी ने नहीं पढ़ाया था, बट पढ़ाते पढ़ाते मुझे यकीन हो गया है कि वो 5 क्लासेस कोई पढ़ा दे तो उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, राइट. सो टुडे इज फर्स्ट सच क्लास. So let us start. So today we will be doing 7 principles of reading hostile passages. To tell you ये मैं कहां से करवा रहा हूं, because I think it is my duty to acknowledge जो मेरा सोर्स है. ठीक है, I am referring the GMAT Manhattan's book. ठीक है, GMAT में Manhattan is considered as the Bible. ठीक है, इसको खरीदने मत चले जाना, 2-2.5 हजार से कम की कोई बुक नहीं आती. तो मैं उस पूरी बुक का जिस्ट निकाल के आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो Manhattan's GMAT से मैं आपको आज की जो टेक्निक्स है वो बताऊंगा. राइट, जिस दिन मैं अपनी खुद की टेक्निक बताऊंगा जो मैंने किसी बुक से रेफर नहीं की है, मैं वो भी बता दूंगा. ठीक है, तो चलो चालू करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू 7 प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग हॉस्टाइल पैसेजेस. हॉस्टाइल मतलब डिफिकल्ट, या व्हाट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट.
So we will be doing 7 principles. Out of the 7 principles, principle number 1 has to do with your emotional attitude, and the remaining 6 have to do with the cognitive skills. Okay, so before I go deep into it, can you people tell me what are the problems you face when you are reading the RC? Please do not tell me कि 2 ऑप्शन में आ जाता हूं और एक गलत करता हूं. मैं क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा हूं. Let me reiterate the question. Difficulty while reading only, not answering the question. पढ़ते समय क्या प्रॉब्लम होती है, पहली चीज ये पूछ रहा हूं. फिर दूसरा अपन क्वेश्चंस में भी आएंगे. मैं लिखते जा रहा हूं जो मुझे दिया जा रहा है यहाँ पर. मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, प्रिय प्रकाश, दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके होल्ड. अरे बाप रे, इतने सारे अब एक साथ आ जाते हैं. सेकंड इज कॉम्प्रीहेंशन. थर्ड इज jargon वर्ड्स. फोर्थ, zoning out. जोनिंग आउट और वो इधर उधर भाग जाते हैं, सब एक ही है. लैक ऑफ फोकस है ना. लूजिंग इंटरेस्ट इज इफ vocab is difficult. तो vocab seems to be a common thing. jargon, vocab. Panicking that time is getting lost. Wrong ideas sometime. मतलब comprehension. ठीक है, wrong ideas and comprehension रख लेते हैं सर. रीडिंग अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 बार पढ़ेंगे. Okay. So these are some common things. I have got around 15-20 replies, but if I can classify, these are the common things that I can see of. And after today's class, I think I cannot say that we will be able to iron out all these areas. Not at all possible. But according to me, the least important is the first one. आप तो ये excuse है, ठीक है. Those who read very infrequently, जो सबसे ज्यादा कम पढ़ेंगे, infrequent readers होंगे, वो सबसे पहली excuse vocab की देंगे. I'm not passing the judgment. I'm not passing the judgment. This is my experience. मैंने देखा है, 4 पैसेज पढ़ के हम थक जाते हैं, या दिन में कोई यार एक आर्टिकल पढ़ते हैं ऑनेस्टली, उसमें हम पहला डिफिकल्ट वर्ड आता है और हम छोड़ देते हैं. You should not do this. ठीक है, मीनिंग ऑफ द वर्ड इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेकंड पॉइंट, which is comprehension of the passage. That is more important. Jargon words again very less important. Again, मैं तो jargon words मीनिंग से भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है. जार्गन वर्ड्स के जगह में क्यों ना जो वर्ड है उसका नाम आयुष या मेधा या पूजा रख दूं, क्या फर्क पड़ता है? जार्गन वर्ड है, आखिर उससे फर्क ही क्या पड़ता है? जोनिंग आउट इज अ बिग प्रॉब्लम. यस, zoning out is a very big problem. Comprehension is a big problem. And because we zone out, zoning out मतलब कहीं खो जाते हैं अचानक से, जैसे क्लास में भी बैठे बैठे अभी बाहर देख के खिड़की में कहीं खो गए होगे, ठीक है, तो that is zoning out. That happens with everyone. But yes, because of zoning out, we quite often we need to reread the passage again. So after today's class, maybe I think we must have some idea about how to tackle these problems. Obviously, vocab problem is not at all discussed in today's class, and that I think is the least important anyways. Okay, so ये कुछ common problem है. So सबसे पहली जो emotional attitude की बात किए थे, ये सुनने में थोड़ा सा, क्योंकि इमोशंस वाली बात है तो हमेशा कॉमिक लग सकता है, ठीक है, कॉमिक तो नहीं बोलना चाहिए या. So this is the principle number 1 that we are talking about. Sorry. So the emotional part of you when you are reading is you need to engage with the passage. See, that is one thing that many of us miss. Engagement with the passage. ठीक है. अब बात ये है कि आप किसी काम को करने से पहले अगर थोड़ा पॉजिटिव एंथुजियाज्म के साथ बैठोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो द एंड रिजल्ट विल बी मच बेटर रादर देन मैंने कुछ शेयर कर दिया या बोर्ड ऑफ टेस्ट दे और टेस्ट दिया है. You must have felt that. एक होता है मैं फोर्सफुली टेस्ट दिला रहा हूं, नहीं आप टेस्ट देना पड़ेगा तभी मेरी एनालिसिस में आओगे. तो that was mock cat number 6 when most of you
would have taken the test forcibly because I asked you people to do it. Not that many took it, but जो भी दिए थे उसमें से 90% forcibly लिए थे. वहीं पर शायद मॉक कैट 6 देने के बाद और जो सिद्धार्थ रॉय ने एनालिसिस करने बोला था कैट के 5 साल के पेपर के बाद, few of you might have gained interest in the study कि नहीं ठीक है अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है और मॉक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है. मॉक कैट 7 मेरे ख्याल से बेटर होना चाहिए in terms of participation also and your willingness to do it. I'm not telling about marks अच्छे आएंगे. It should be ideally marks भी better होने चाहिए. At least interest and participation level both should increase because now you are more interested in CAT's study. That is my assumption although. ये मेरा assumption है जिसके basis में बोल रहा हूँ कि 7 वाला में better participation होगा. I have been proved wrong millions of time when I make any conclusion about the student behavior. तो मैं ज्यादातर गलत ही हो जाता हूँ. ठीक है. I hope तुम लोग गलत नहीं prove करोगे. ठीक. So when you want to engage with the passage, similarly I am saying engage with the CAT. उसी तरीके से engage with the passage. The simple thing that you can do is when you are reading, identify the good guys and the bad guys. मतलब इधर पे कोई अमिताभ बच्चन दिखा तो उसके साथ खुश होने का, उसके लिए सीटी बजाने का, ताली मारने का, वाह बड़ा अच्छा काम किया है. इधर कोई अमरीश पुरी दिखा तो अमरीश पुरी को गाली बकने का, अपनी लैंग्वेज में जो भी गाली बकना है बको, but associate with the passage. So entire this first principle is talking about associating. Nobody can teach you associating. Cognitive skills वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट ये चीज ऐसी है बेटा इंटरेस्ट ला. ये सिर्फ वही बोलने वाली बात हो गई बेटा डिप्रेशन से दूर रहे. It's easy to say but difficult to implement, right? So all I can say is that try to identify what is good, what is bad, and engage emotionally with the passage. If you are not able to do so, pretend. Pretension तो हमें आता ही है. So quite a few of you might be pretending कि क्लास में समझ में आ रहा है, उसी तरीके से पैसेज भी समझ में आ रहा है, pretend कर लो. लाइफ 3-4 मिनट के लिए तो आसान रहेगी. As I told you, not much I can teach you, but yeah, coming forth जो skills वाले part है उसमें definitely few important things जो आपको comprehension में help करेगा. The first one was only about getting interested. Now, this principle number 2, ध्यान रखेंगे, principle number 2 is for entire passage. This is for entire passage. So, before going to principle number 2, ठीक है, एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं. What is the most important part of your memory? Cognitive मतलब memory होता है, ठीक है. बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मुझे कि वो भूल जाते हैं पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, ठीक है, they forget. So what is the most important part of your memory is the working memory, जो आप कंप्यूटर्स में भी जानते होंगे, ठीक है, या आपके मोबाइल में जो जानते होंगे. the entire memory is not the working memory. ठीक है, there is a small part of it which is actually working at a given time, and that part is more important. So we all need to understand that when we are reading the passage, this is the part which is being getting hit. इसको हमें इसको कंट्रोल करना है. तो आप बताइए, जब आपके मोबाइल में मैसेज आता है या स्लो हो जाता है, मोबाइल जब स्लो हो जाता है या कंप्यूटर लैपटॉप स्लो हो जाता है, तो what do you do? And what is your idea of keeping your mobile phone functional in a best efficient way? Okay, so restart is a brute method. सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कर दो restart. रीस्टार्ट लोग बोल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाला कोई नहीं है क्या? रैम क्लियर, या दैट फैक्ट्री रीसेट, ओ माय गॉड, दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेप. ओके, फैक्ट्री रीसेट, रैम क्लियर, जंक फाइल्स रिमूव करना, ठीक ठीक, राइट. सो कैश मेमोरी को क्लियर करना, यस, कैश मेमोरी, कैश क्लियर करते हैं, ट्रैश क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है. टास्क मैनेजर में जाकर के यू सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट. सो बेसिकली टास्क मैनेजर, इफ यू आर saying it's a very technical and jargon वाला word, but task manager जब है फाइल उनको क्लियर करना, ठीक है. ऑलराइट, तो बात वही हो रही है यहाँ पर कि जब मेरे बहुत सारे एप्स खुले होते हैं मोबाइल में, तो माई स्पीड कैन स्लो डाउन.
not for the Apple users, huh? Matlab I've never used Apple, so I don't know. But am I not audible? Few people are saying not audible. Am I not audible? तो रिद्धिमा आपके एंड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सब ऑडिबल बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं सो दैट वॉइस, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेक हो रही है, तो ठीक है, बट एक बार आप खुद के एंड पे भी चेक कर लो. ओके, राइट. So when I have multiple apps being open in my mobile, chances are high कि वो थोड़ा सा स्पीड में कम हो जाए, तो आप रीस्टार्ट कर लेते हैं. रीस्टार्ट करते ही इस वजह से कि सारे एप्स जो ओपन थे वो अपने आप क्लोज हो जाए. बट देयर इज अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट, ऑफ कोर्स, नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ एनी डिवाइस, and it's the human beings also, is very very important. So your working memory is something जो बहुत ही short span में काम करती है, मतलब शॉर्ट स्पैन तक के किसी चीज इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगी. आपको यहीं पर फोकस करना है. ठीक है, टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड. पैसेज में वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई शुड अलाउ इनसाइड माय वर्किंग मेमोरी. ठीक है ना, वर्किंग मेमोरी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मुझे डालना है, राइट. और वर्किंग मेमोरी के बाहर मुझे क्या फेंकना है. ठीक है, राइट. व्हाट थिंग आई शुड नॉट अलाउ. Two things are very important. So I will place vocab as here, jargon words as here. ये सब हमारे को अंदर नहीं लेकर के जाना है, इसकी जरूरत नहीं है. What we need to take inside the working memory is what is the main point that author is making. What kind of examples is he giving. हमारा पूरा फोकस अभी कुछ आधे घंटे शायद इसी चीज में होगा. ठीक है, राइट. So let us move ahead. Right. So the next story is next principle is look for a simple story. ठीक है. Now when we say look for a simple story, what does it mean? पूरे पैसेज में आप इन तीनों में से कोई सी चीज कर सकते हो, करने की कोशिश करो. तीनों अप्लाई करना है तो तीनों अप्लाई करो. ठीक है, ये पूरे पैसेज की कहानी बयां करने के लिए बोल रहा है. एक पूरा पैसेज पढ़ के एक सिंपल स्टोरी अगर कोई बनाने बोले तो क्या बनाओगे. ठीक है, तो देयर आर वेज दैट यू कैन think of as pointers. So if you can read whatever is given in this slide, it's self-explanatory in a way, but you read it, then I will explain. या पढ़ लिया. सो हम सब ये प्रैक्टिस करेंगे अभी. टेक्स्ट इट टू मी बोल रहा है कि अगर किसी अपने फ्रेंड को एसएमएस करना है, व्हाट्सएप करना है कि यार क्यों पढ़ा है मैंने, उसको 160 कैरेक्टर्स में लिख करके भेजना है. शॉर्टकट लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब्जेक्ट हटा दो, बट उसको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा है, तो क्या बताओगे. that is one thing that you can look for in a simple story form, whatever you have read. This might be difficult. The easier part is making table of contents. What I mean to say is start with 2 to come at 1. Make a table of contents. Alternatively, you can create a short table of contents. Use 5 words or fewer for the headline of each paragraph. As written, these sounds may not sound exactly like a story, but they outline the same narrative. अब पैसेज में 4 पैराग्राफ है, तो ये बोल रहा है स्टार्ट यहां से भी हम कर सकते हैं.
कि हर पैराग्राफ को पढ़ के उसको टाइटल दे दें. Give a title to the paragraph in not more than 5, 6, 7 words. When you have 4 paragraph and 4 titles to it, उनको फिर ध्यान में रखते हुए एक टेक्स्ट समरी बना सकते हैं. ठीक है. The very important part, another important part which will help you to come at table of content is 3. ठीक है. थर्ड वाला क्या बोल रहा है? सिंपल स्टोरी को क्लासिफाई करना है तो पैराग्राफ में यूजुअली सारी चीजें दो तरीके से डिवाइड होंगी. वन इज कंटेंट एंड अदर इज जजमेंट. या तो ऑथर कोई कंटेंट की बात कर. कंटेंट क्या होता है? द साइंटिफिक और हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. एक होगा उसका सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर मतलब वो पैसेज लिखा क्यों है, क्या बताना चाह रहा है. जनरली वो कॉज इफेक्ट वाले रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर प्रोसेसेस थ्रू विच दे आर ट्राइंग टू अचीव अ गोल हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल इस तरीके की कुछ बात हो सकती है कि 10 थिंग्स दैट गवर्नमेंट शुड डू फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल, है ना. तो 10 चीजें जो गवर्नमेंट को करना चाहिए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए. प्रोसेस जैसी चीज होगी. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर ही प्रोसेस वाला हो जाएगा. 10 स्टेप्स बता रहा है वो. राइट. कॉज वाली चीज क्या हो सकती है कि वैक्सीन अगर आएगी तो हाउ कोरोना वायरस विल रिड्यूस या इंक्रीज, या हाउ लॉकडाउन विल इफेक्ट द चांसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वायरस. वो कॉज वाली कुछ हो गई बात. तो वो बोल रहा है पैसेज में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि लिखा क्या है. क्या कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज है, क्या प्रोसेस समझाया है, कॉज एंड इफेक्ट को और एक्सप्लेन किया है, लॉजिकल रिजल्ट बता रहा है, एविडेंस दे रहा है ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, कैटेगरीज या एग्जाम्पल्स के जरिए बता रहा है. ठीक है. So this is one part of the passage which is the subject matter. The other part of the passage is author gives his or her own judgment also. हमेशा देखना, एक वो सब्जेक्ट चुनता है फिर ऑथर उसमें अपनी खुद की ओपिनियन देता है. अच्छा, वो ओपिनियन देने के लिए इनमें से कोई सी भी चीज यूज करता है फिर. ठीक है. जैसे कि 10 चीजें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए टू रिवाइव इकोनॉमी में, वो 10 में से एक या दो कोई थ्योरीज की बात कर देगा कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसा बोल के गया था या कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था तो इंडिया को ऐसा कर लेना चाहिए. वन थिंग. इवैल्यूएशंस एंड ओपिनियंस. एक्सपर्ट्स को कोट करेगा कि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं, या फिर किसी और रिपोर्ट को कोट करेगा या किसी स्टडी को इवैल्यूएट करेगा. कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर सकता हूं किसी स्टेप में कि यूएस में ऐसा किया था तो ऐसा हो गया. तो ऑल ऑफ कोर्स दीज आर ऑल ओवरलैपिंग थिंग्स वन वे और द अदर, बट दिस मे क्लासिफाई इन जजमेंट में क्लासिफाई इनटू वन ऑफ द एबीसीडी. ठीक है. सो फ्रॉम दिस स्लाइड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट पैसेज समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है कि कंटेंट क्या है और ऑथर का जजमेंट क्या है. ऑथर अपने जजमेंट को देने के लिए कई बार, अपना जजमेंट पास करने के लिए कई बार अपने ऑपोजिशन वालों की भी व्यू देता है कि कुछ लोगों का ये मानना है लेकिन मेरे हिसाब से. So that is what we are saying as comparison and contrast, evaluations and opinions of others. So first of all, we need to find out these two relevant things. This will help us to make table of content and maybe go to the finding the final summary. Now, will I do this in exam? No, I will not do this in exam. कोई भी नहीं कर सकता, logically कोई भी नहीं कर सकता. But कहीं ना कहीं जब मैं घर में practice करूंगा तो मुझे इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा. नॉट फॉर इजी या मॉडरेट लेवल पैसेजेस. व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज व्हेन पैसेजेस आर डिफिकल्ट या यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. ठीक है. तब ये काम मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश करना चाहिए. ठीक. गाइस, मेरे घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो गया है सडनली. मेरे लैपटॉप में ज्यादा बैटरी नहीं है तो आई मे गेट डिस्कनेक्टेड सडनली एंड आई विल देन लॉग इन अगेन फ्रॉम अदर लैपटॉप. तो अगर अचानक से बाहर हो जाऊं तो चिंता मत करना, आई विल लॉग इन या फिर आई विल शेयर अनदर लिंक. लेट मी कंटिन्यू बाय दैट टाइम. ओके. नाउ दिस प्रिंसिपल नंबर 3 and 4 what we are going to discuss, this is about the beginning of the passage. Now understand one thing, beginning of any passage and henceforth also the paragraph of each paragraph of that passage is the most important thing. शुरुआत की 3 लाइनें हर पैराग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट है.
मुझे वो 3 लाइन नहीं समझ में आई तो पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा. इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड 100% ऑफ द बिगिनिंग, भले आखिरी का 40% समझ में आए, रादर देन अंडरस्टैंडिंग 50-60% ऑफ द पैसेज. शुरुआत समझ में आ गई तो हमें सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है. हम इस पे भी बात करेंगे कि बिगनिंग कैसे समझना है हमें. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, व्हाट वी आर सेइंग इज कि वी विल ट्राई टू, बिगिनिंग समझने के दो तरीके हो सकते हैं. वन प्रिंसिपल इज linking to what you already know. This is called as concretizing. Concretizing. So what do we mean by concretizing? In this case, that is actively imagine what the words are referring to. So when I say a teacher, what kind of image comes in front of you? When I say a villain, who comes in front of you? What kind of image comes in front of you? When I say coronavirus, what kind of image comes in front of you? So ये बोल रहा है अगर beginning difficult है, हर जगह मत apply करना. अगर beginning difficult लग रही है तो उसमें जो nouns हैं और verbs हैं उनको imagine करना चालू करो. क्या कैसा दिख रहा है वो, so that you can get emotionally bit more attached with the passage. ठीक है. Let us read this one. Consider the following sentences. ठीक है. ये किसी पैसेज की ओपनिंग है, इसको आप पढ़ो. ठीक है. Okay. No, I'm not asking you people to give me the summary. What I am asking वही करना है, अपना ज्ञान ज्यादा नहीं लगाना है. मुझे कॉन्क्रिटाइजिंग चाहिए. कॉन्क्रिटाइजिंग मतलब एक्स बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट वर्ड जब पढ़ते हो तो दिमाग में किस तरीके की इमेज आई. सफेद कपड़ा पहने हुए, 2 टेस्ट ट्यूब को पकड़े कुछ इधर से उधर कर रहे हैं. आई डोंट नो. वॉट एवर इमेज कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज वॉट वी वॉन्ट. सैंपल दिखा देता हूं इसका. Yeah. So this is I've picked up from the book only. Yeah. Ex-biologist, scientist word. I mean, this can be so different for each and everyone, है ना. ये just एक example है. आपके दिमाग में कोई और image आ सकती है. ठीक है. Smart folks in white coats who search for life on other planets. टेलीस्कोप से कोई देख रहा है. ठीक है. कार्बन, कार्बन की इमेज तो सबके दिमाग में रहती है. ठीक है. बैकबोन. तो ये जो की वर्ड्स हैं, नाउन दिख रहा है हमें. ठीक है. उनको हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, ये बिगिनिंग में अप्लाई कर सकते हो. अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. विल यू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग दिस वे? नो, यू विल नॉट. समझ में आएगा पूरा? नहीं. 100% तो नहीं आएगा, बट हाँ काम आसान हो जाएगा. 60-70% आ जाएगा. ये समझ में आ जाएगा कि यार इनके बारे में ऐसी कुछ बात बोल रहा है. नाउ व्हाट टिपिकली हैपेंस इज व्हेन अ बिगिनिंग इज डिफिकल्ट, देयर आर टू वेज. या तो आप पूरी बिगिनिंग फिर से पढ़ो, वो बेवकूफी है मेरे हिसाब से. या तो आप अगली 4-5 लाइन पढ़ लो और समझने की कोशिश करो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बिगिनिंग किया है, फिर जाकर के पढ़ो. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट व्हेन यू फाइंड अ बिगिनिंग डिफिकल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. आगे बढ़ो. आगे बढ़ करके 4-5 लाइंस पढ़ो और उसके बाद समझ में डेफिनेटली आ जाएगा कि ये बात क्या बोलना चाह रहा था. फिर जाकर के फिर से बिगिनिंग एक बार देखो. ठीक है. राइट. गाइस जस्ट मैं 2 मिनट ये शेयर स्टॉप कर रहा हूं बिकॉज आई थिंक आई शुड मेल दिस स्लाइड टू माई सेल्फ. ये लैपटॉप अगर डिस्चार्ज हो गया तो प्रॉब्लम होगी. 2 minutes, I will get back.
या सो नाउ दिस इज अनदर थिंग फॉर द बिगनिंग. ठीक है, एक और चीज हम कर सकते हैं और ये मुझे बेटर टेक्निक लगती है, बिकॉज कॉन्क्रिटाइजिंग, नाम बस कॉन्क्रिटाइज है, इमेजिन करने कह रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. अनपैक द बिगनिंग. ठीक है, शुरुआत में बस शुरुआती स्टेटमेंट्स के लिए है प्रिंसिपल 3 और 4. राइट, दैट विल हेल्प यू to understand table of content, prepare table of content also. So read this, what it is trying to say. I will demonstrate it with the help of an example. Yeah, I think you must have read it. क्या बोल रहा है, शुरू की 3-4 लाइन अगर डिफिकल्ट लग रही है तो उसको तोड़ना सीखते हैं हम, सिंपल वर्ड्स में बनाना सीखते हैं. सिंपल वर्ड्स में कैसे बनाएंगे? फर्स्ट काम ये करो कि कोई कॉन्क्रीट नाउन पिक कर लो. कॉन्क्रीट नाउन जिसके बारे में सेंटेंस है, जनरली वो या तो नाउन होगा या अगर कुछ और चीज है तो भी एक नाउन पिक कर लो. ठीक है, पिक समथिंग दैट यू कैन टच एंड दैट कॉजेज अदर थिंग टू हैपन. ध्यान रखेंगे, नाउन की बात कर रहे हैं. Do not necessarily pick something at the start of the sentence. We will see. अभी एक एग्जाम्पल अपन करेंगे. Then turn actions back into verbs. What do we mean by turning the actions back into verbs? In academic language, verbs are often made into noun or adjective phrases. Example दिखाता हूँ. या पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. वर्ब्स में जो 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 एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं उनको अगर वर्ब्स में ट्रांसलेट कर लो तो बहुत अच्छी बात है. ये वाली टास्क यहां से इजी हो जाती है. फिर सिंपल एक एक सेंटेंस बनाते जाओ. हर सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. हर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, किसी एक चीज के बारे में हो और वो उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, ऐसी बात कर रहा है. हर सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से रिलेट करो. दिस मीन्स, एंड सो, इस तरीके के वर्ड्स. फॉर इंस्टेंस, दिस रिजल्टेड इन दिस प्रोसेस, दिस दैट, फॉर, ऐसे प्रोनाउंस वगैरह कुछ यूज करके उसको अगली लाइन पिछली लाइन से रिलेट करो. सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत लोग डरते हैं, सिंप्लीफाई और कोट ऑफ डिटेल्स. इफ अ जार्गन वर्ड इज यूज्ड इन एन इंपॉर्टेंट वे, पुट कोट्स ऑफ अराउंड इट. बोल रहा है अगर कोई जार्गन वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता है, उसको इन कोट्स लिख दो, क्योंकि ये टर्म जरूरत नहीं है. अगर जरूरत होगी तो बाद में देखा जाएगा. ठीक है, वो बाद में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 5 चीजें हैं. कॉन्क्रीट नाउन पकड़ेंगे, उनको उनके बारे में जो दिया होगा उसको वर्ब में ट्रांसलेट करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे. देखते हैं. या रीड दिस वन. ये पूरा पूरा एग्जाम्पल ही है. दिस इज द पैराग्राफ विच हैज बीन गिवन टू यू. ये यहां से यहां तक के, और उसको इसने ब्रेक कैसे किया है वो इलस्ट्रेशन पूरा दिया है. सो रीड इट.
There can be many ways to do it. This is just one illustration. ठीक है, तो let us see. फर्स्ट सबसे पहले बोल रहा है कॉन्क्रीट नाउन उठा लो, बेटर होगा कॉज को उठा लो, तो जो जो सारी चीजें की जड़ है, तो बोल रहा है अच्छा कैंडिडेट है लीड डस्ट. सो लेट अस फॉर्म द फर्स्ट सिंपल सेंटेंस. देयर वाज लीड डस्ट इन वेरियस एनवायरनमेंट. सिंपल सेंटेंस है, ठीक. देयर वाज लीड डस्ट इन वेरियस एनवायरनमेंट. फिर बोल रहा है टर्न अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज एक्शन नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स बैक इनटू वर्ब. फॉर इंस्टेंसेस एक्सपोजर becomes were exposed. तेरा एक्सपोजर अच्छा है, एक्सपोजर इज यूज्ड एज अ नाउन, तो बोल रहा है ऐसे नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर दो, वर एक्सपोज्ड. ठीक है. बिहेवियरल एस्पेक्ट, बिहेवियरल को बिहेव्ड कर दो. तो इस तरीके से चीजों को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर दी एक्शन नाउन्स या फिर एडजेक्टिव्स जिनको वी कैन ट्राई to convert into verb. Why we are converting into the verb? Because we are trying to form subject verb ke sentences which are much easy to understand. ठीक. Put only one thought in one sentence. ठीक है. Link each sentence to the previous with this or these, so that the second sentence could read young children in these environment were exposed to this dust by accident. पहला sentence हमने बनाया there was lead dust in the various environment. सेकेंड बता रहा है कि यंग चिल्ड्रन इन दीज एनवायरमेंट्स वेयर एक्सपोज्ड. तो नेचुरली नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सपोजर के वजह से क्या हुआ वो आ सकता है. ठीक है, राइट. तो फिर आगे बढ़ते हैं. सिंप्लीफाई कोड डिटेल्स और जार्गन. अब ये डायक्रॉनिक का मतलब नहीं पता है, आप उसको जो लिखना चाहो वो लिख दो. ये सिर्फ एक्सक्यूज है, कोरी एक्सक्यूज की वोकैब और जार्गन वर्ड्स की वजह से पैसेज समझ में नहीं आता. सिंपली कोट इट ऑफ. Now read what it is trying to say. There was lead dust in various environment. पहला सेंटेंस, जाहिर सी बात है इसके आगे यही होगा कि क्या हुआ उसकी वजह से. हाँ, तो ये हुआ कि यंग चिल्ड्रन एक्सपोज हुए. फिर आएगा तो क्या हुआ, तो ये हुआ दिस एक्सपोजर में हैव चेंज्ड हाउ द चिल्ड्रन बिहेव्ड. इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया और इस इन्वेस्टिगेशन में दो सैंपल ग्रुप्स बनाए गए थे. दिस लुक्स मच लेंदियर. Of course this looks much lengthier than the given thing, but if I am not able to understand a difficult passage, then I'm not left with much choice. Will you write this? No, you will not write this. While practicing you should write, but in the exam you shouldn't write. Okay? While practicing you should write it, but in the exam you shouldn't write it. Yeah. So what it says, this list is much easier to dive into and understand than the original sentence, even though the list contains nearly twice as many words. Also note that subject and verb of the original sentence do not appear till the end of the list. This phenomena is very common. Often it is easier to understand the outer frame of the sentence last. ठीक है. तो this is for the beginning. हमने पूरे पैसेज का देखा, बिगिनिंग का देखा कि कैसे हम स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं. अब बिगिनिंग के बाद वाली चीज, मैंने बिगिनिंग देख ली, उसके बाद क्या होता है. बिगिनिंग के बाद ओके, बताता हूं मोइज, वो पहले इसको कंटिन्यू कर देता हूं. बिगिनिंग के बाद जो भी सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं, तो आई शुड ट्राई टू मेंटली थिंक अबाउट इट. इज दिस न्यू सेंटेंस एक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग. क्या जो नया सेंटेंस है, जैसे कि मैं बोल रहा था ना, अच्छा बच्चे एक्सपोज हुए तो क्या होगा. ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड चीज कर रहा है कि कोई सरप्राइजिंग चीज बता रहा है. ठीक है. क्या ये सपोर्ट कर रहा है मेरी व्यू को या अपोज कर रहा है, यानी प्रीवियस लाइन को अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है. क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है या उसको आंसर कर रहा है. So each sentence plays a role. What it is saying is, if you have understood the beginning, you can then increase the pace, and you only need to understand in the later part कि ये जो sentence use हो रहा है वो first line या इसकी previous line से किस तरीके से related है. That is the only thing that we need to understand. These are very important words that help you to understand the
Yeah, guys, am I audible? So I will just share PPT in 2 minutes. Meanwhile, in your group, I have shared one exercise. ठीक है, आप वो टेलीग्राम ग्रुप में एक एक्सरसाइज मैंने शेयर की है, किसी ने नहीं देखा है तो उसको सॉल्व करो, मैं जब तक पीपीटी भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसे सॉल्व करिए। आई थिंक अनपैक करने मैंने बोला था, फर्स्ट वाला जो है उसका मुझे कुछ आंसर आप लोग बताओगे, टाइप करोगे? द सिंपलिस्टिक क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा अच्छा कैंडिडेट होगा? जो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक नाउन पिक किया था जिसके बारे में सेंटेंस लग रहा है या जो कॉज है या मेन चीज लग रही है वो पिक किया था। तो फर्स्ट वाले में क्या पिक करोगे? ओके, लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन, ऑलराइट।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चलो बनाओ तो फिर। 3 लोगों ने बोला है, others should also do, otherwise you will fail. फेल मतलब you will not enjoy the class, I mean you will leave it कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी 42 से 39 हो चुके हैं, so I don't want to go it further down, right? So please answers बताओ, try attempting it. There can be many ways of doing it, nothing right or wrong. एक नाउन उठाओ, सारे एक्शन नाउन का एग्जांपल बता देता हूं, है ना इसमें मैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी जैसे एक्शन नाउन है, डिस्कवरी को आप डिस्कवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, राइट? इस तरीके की चीजें कुछ और है तो, या रिएक्शन को रिएक्टेड लिख सकते हो, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। कम ऑन गाइस, no one? Himanshi, Moiz, there are so many people, I'm not getting any answer. Soumitra, no one is giving me the answer. Okay, Mayuri, नहीं, ये आप लोग जो मुझे भेज रहे हो ये गलत भेज रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने, जितने लोगों ने भेजा है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। यू आर अडॉप्टिंग द शॉर्टकट। आप लोगों को मैंने सेंटेंसेस में ब्रेक करने बोला है, आप मुझे समरी का ज्ञान मत दो यहाँ पर। व्हाट इज समरी? आई डोंट वांट इट। आई वांट समरी इन 4 to 5 सिंपल सेंटेंसेस, only then I will consider the answer. I am typing my answer. This is how I would have written it. मैंने सबको भेजा है, ये मैं इसको ऐसे लिख देता, अनपैक करना था तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। लिविंग थिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड, मेरे लिए प्लांट एनिमल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले मैं अपना पढ़ लेता हूं, फिर 2 लोगों ने और भेजा उनका भी पढ़ लूंगा। दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन रिवाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट. It is because of discovery of new microorganism. These new microorganism were not known to taxonomic scheme. Taxonomic word मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कोट्स में डाल दिया। ये बात बोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अब यहाँ पर बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो मेरे को वैसे ही समझ में आ गया था, मैं क्यों करूं। बट मैं सिंपल एक्सरसाइज से ही चालू करवा सकता हूँ। टुवर्ड्स द एंड जो हम पैसेजेस करेंगे वो कितने बनते हैं, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ आई एम रीडिंग, हिमांशी ने भेजा है। Scientists had the previous classification of 3 categories. They found few living things of different variety, so they revised classification. चलेगा, microorganisms लिख दो तो पूरा better idea आ जाएगा, because इसमें जो नई चीज मिली है वो नहीं लिखा है तुमने, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन रिवाइज हुआ है। देवाशीष, ये भी अच्छी बिगनिंग है। मैं एक बार ये भी बिगनिंग सोचा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहला नाउन पकड़ता हूं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए,
वो पहले क्लासिफिकेशन में नहीं थे. दैट इज योर नेक्स्ट सेंटेंस. दे डू नॉट फॉर इन द प्रीवियस क्लासिफिकेशन. सही है. अगला भी सही है, बिल्कुल सही. देवाशीष, वेरी गुड अटेम्प्ट. और ऑल द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड नाइसली. Biologist revised due to discovery of it does not fit into previous schemes. चलेगा राजेश, शॉर्ट है, चलेगा. ओके, राइट. हर्ष, चलेगा ये भी, बट सबसे अच्छा देवाशीष का है. ठीक है, राइट. नाउ एवरीबडी should attempt the second and third one and send it to me quickly. अब मैं रैंडमली फिर बोलूंगा, नहीं तो क्लास छोड़ के जाओ. मुझे सेकंड थर्ड का आंसर अगले 2 मिनट में सबका चाहिए, otherwise I will remove you from the class. No point of getting entertained or feel uninterested because of me. सेकेंड वन डिस्पाइट अश्योरेंसेस वाला, और थर्ड वाला भी, दोनों ही करेंगे. Nobody is sending, so I think we should end the class here itself. Okay. मोइज, ठीक है, बस कम वर्ड्स में उसी चीज को लिख दिया है. ठीक है. The purpose is not met, although समझ में आ गया है, but the means is important. End is not important to me right now. End result cat वाले दिन important होगा, अभी तो रास्ता important है. I want it to be broken down into these simpler sentences. But nevertheless, you are the only one who is responding. Are other people even trying? I have only received Shravani का response कि she is typing. बाकी लोग कर रहे हैं तो हम वेट करें, नहीं तो खाना पूर्ति करते हैं, खत्म करते हैं यार. Not enjoying this. अदिति, आरजू, अमन नाटा, अनमोल काकरिया, आयुष जैन, आयुषी मिश्रा, दीक्षा नागपाल, दिव्या सिंह wants response. I want response from each of you.
ओ सॉरी, आई वॉज ऑन म्यूट। ये कितनी देर से म्यूट में हूँ मैं, बहुत सी चीजें बोल गया। ओके, ठीक है, राइट। सो गाइज, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। आई थिंक वो भी मेरा मिस हो गया आप लोगों को जो मैं दिखा रहा था। हैव यू नोटेड डाउन द प्रीवियस स्लाइड? ये वाला? ओ गॉड, नहीं 10 मिनट नहीं, मैं 4-5 मिनट से बोलना चालू किया था मेरा, और मैं अपने आप को अनम्यूट करना भूल गया। ठीक है, ठीक है, आई विल अगेन अगेन reiterate all the things that I have discussed. No need to send me the answers now guys, it's okay. अब आंसर्स मत भेजो आप लोग, अब इधर फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। हमने अभी देखा ना, अभी अभी हमको अगर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पढ़ना कैसे है, तो बिगनिंग में ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद की सारी लाइंस को लिंक करते जाना है कि प्रीवियस या बिगनिंग से या प्रीवियस लाइन से कैसे रिलेटेड है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, दे गिव यू द आइडिया कि किस कैसे रिलेटेड है। You can click a pic of this particular slide. It's impossible for you to write all those things, all the things, and almost काफी सारे words आपको clear भी होंगे इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? दो व्यूज दे रहा है, तो कैसे वर्ड्स यूज होंगे? ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, वाइल, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली हमने अभी कहीं देखा भी था, इन कॉन्ट्रास्ट, ये सब कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स है। बट कई बार ऑथर जो है वो बिना मन के उसे अग्री करना पड़ता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया से, वो ये वाले है, प्रोवाइड कंसीडरिंग कॉन्ट्रास्ट। मतलब ऑथर अनविलिंगली अग्री कर रहा है किसी और की बात से, तो वो कैसे वर्ड यूज कर रहा है? ग्रांटेड, हाँ ये बात तो सही है। एडमिटेडली, ऑल्दो, जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, मान लिया तेरी बात सही है। मान लिया तेरी बात सही है जब तुम बोल रहे हो, मतलब तुम फोर्सिबली माने हो। आगे डेफिनेटली ऐसा कुछ बोलोगे, मान लिया तेरी बात सही है लेकिन ये भी तो सही है, मतलब उसको पूरा ग्राउंड नहीं दे रहा है, कंसीड कर रहा है थोड़ा सा पार्ट। इस तरीके के वर्ड्स। एम्फेटिक कॉन्ट्रास्ट, एम्फेटिक कॉन्ट्रास्ट मतलब खुशी खुशी, हाँ, बट स्विच कर रहा है, खुशी खुशी कर रहा है, बट ऑल द सेम, स्टिल, इस तरीके के वर्ड्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट, मतलब एक फर्स्ट ग्लांस में तो यही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों वर्ड्स जो कैटेगरी है वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स की है। व्हेन आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, आई एम कॉन्ट्रास्टिंग द पोजीशन दैट आई हैव टेकन इन द प्रीवियस पैराग्राफ। पिछली पॉइंट को बिल्कुल डिसमिस कर रहा हूं, या सिमिलैरिटी बता रहा हूं। इन द सेम वे, लाइकवाइज, स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कशन, फर्स्ट सेकंड, टू बिगिन विथ। जब भी मैं टू बिगिन विथ बोल रहा हूं तो समझ जाना एक बात तो आगे और कुछ ना कुछ बोलूंगा, नहीं तो ये टू बिगिन विथ इररेलेवेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए तो देर इज लॉट ऑफ लिस्ट दैट इज गिवन हियर, द एंटायर लिस्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। this helps you to understand what is the link between the two sentences. All right, now अच्छा हुआ तुम लोग म्यूट में थे, मैं बहुत देर तक तुम लोग को डांट रहा था आंसर नहीं लिखे थे, तो अब मैं शांत हो गया हूं तो वो पार्ट स्किप हो गया। अच्छा हुआ दैट, वो शायद रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा, आई डोंट नो। सो दैट पार्ट इज स्किप, जब मैं डांट रहा था कोई आंसर नहीं दे रहा था। तो अब आ जाते हैं बिगनिंग ऑफ द पिक अप द पेस। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज द बिगनिंग इज इंपॉर्टेंट। 100% effort should go into understanding the beginning. 100% समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोशिश करना है कि जितना समझ में आ सके उतना हम करें। नेक्स्ट, बिग सरप्राइजेस और चेंज इन डायरेक्शन, जहां पर भी हो रहा है वहां पे थोड़ा सा वेट कर लूं। कैसे देखोगे बिग सरप्राइजेस और चेंज इन डायरेक्शन? जो पिछले अपन ने लिंकिंग वर्ड्स देखे हैं ये हेल्प करेंगे। बिग रिजल्ट्स, कहीं पर किसी स्टडी का रिजल्ट बता रहा है या फायदा बता रहा है, वहां पर थोड़ा नोट डाउन करूंगा। बस पैसेज का यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स दैट मे हेल्प यू टू इंप्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, दिस इज अ सैंपल पैसेज। चलो ट्राई करते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर अपन कुछ। रीड दिस।
व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड मतलब ये सामने जो पैराग्राफ है इसे पढ़ना है और क्या, नहीं दिख रहा है क्या? इट इज ऑफन सेड इन फेवर, आई होप द स्क्रीन इज शेयर्ड. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड. ओके, मेरे को तो शेयर दिखा रहा है. ओके, just wait, some maybe problem with the. ठीक है, I will reshare it. Just give me a minute. Okay, अभी दिख रहा है? Is this is it visible now? Sample passage, a small one. Right. So please read this small passage and then answer the two questions. Okay, कुछ sharing में problem हो गया होगा. All right. So अनपैक नहीं करना है अभी. अभी हमको एसएमएस बनाना है, मतलब समरी बनाना है. ठीक है, आप अपने वर्ड्स में समरी बनाओ. अनपैक की 2-3 एक्सरसाइजेस कर लिए. दिस इज बिगिनिंग ऑफ वन पैसेज दैट केम इन कैट. ये कैट में आया था एक पैसेज, उसकी बिगिनिंग है. ठीक है, तो मुझे एसएमएस करना है वैसा, मतलब आपको यू विल टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं क्या? सॉरी, मैं टेलीग्राम ग्रुप अभी देखा, काफी सारे लोगों ने बोला है टाइप नहीं कर पा रहे. आई हैव चेंज दी सेटिंग्स, आई होप नाउ. वैसे भी
सभी को टाइप करना की परमिशन होनी चाहिए थी, बट नेवरथलेस आई डोंट नो। सो प्लीज चेक, अभी भी आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं क्या तो मेरे को टेलीग्राम में बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट इन दैट ग्रुप ऑल्सो। ओके ओके महक, आप अनेबल हो, अभी भी मैसेज, ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में टाइप कर दो। शायद कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, दिस इज दूसरा लैपटॉप है तो कुछ सेटिंग्स का इशू होगा, मे बी, आई डोंट नो व्हाई। I've received one answer from Ayush Jain, others I think are not able to answer. Guys, am I audible to all of you? ओके ओके फाइन। आरजू, फिर आपके एंड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप एक बार देख लो। मोइज, अच्छा अटेम्प्ट है, बट इसको और छोटा कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना, ठीक है, दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। अदर्स प्लीज टेल मी आंसर्स। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस जो मन में आ रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है वो लिख दो। वॉर के कुछ पॉजिटिव्स बताया है, कुछ नेगेटिव बताया है, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है बता दो। ओके शशांक, गुड अटेम्प्ट। ओके नो आयुष, तुम्हारा तो बिल्कुल ही ऑफ द मार्क निकला है यार, वैसा कुछ नहीं बोल रहा है वो। वॉर ब्रिंग्स आउट हिडन टैलेंट्स लाइक एंड्योरेंस वेयर इज आइडलनेस बट जस्ट टू मेक पीपल वांट। यस प्रियेश, ये सही है एकदम। ओके सो अकॉर्डिंग टू मी, बहुत दो तीन लोगों ने आंसर भेजा है, कुछ लोग आंसर नहीं भेज पा रहे हैं, वो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि काफी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बट लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन एटलीस्ट, एंड वी विल हैव अ क्लास सून, मतलब ये कंटिन्यूएशन में, बिकॉज अभी कम से कम आधी क्लास और बची, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टीज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। दिव्या सिंह एकदम सही बनाया है, बहुत सही बनाया है। कौशंबी, वॉर ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मैन tend to become but war is very good। कौशंबी, ये भी सही है। महिमा बिल्कुल सही है, छोटा है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो बट ठीक है, अच्छा है। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द इट राइट। व्हाट द ऑथर सेज इज, इसका स्टांस वॉर को लेकर के क्या है। स्टांस ये है कि ऑथर इज सेइंग कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, कि आप अपना पोटेंशियल डिस्कवर कर सकते हो, पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हो, और शांति के समय जब वॉर नहीं होता, इन द टाइम्स ऑफ पीस, लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो ये सब कुछ पॉजिटिव बात करी है। लेकिन यहां से स्विच मार दिया, बट टू अपलॉड वॉर, बट टू अपलॉड वॉर मतलब ऑथर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि वॉर को अपलॉड करना एक प्री पॉस्चरस एक्टिविटी है। प्री पॉस्चरस का मतलब नहीं भी पता है तो बट टू अपलॉड वॉर बोल रहा है शुरू में तारीफ करने के बाद, तो बोल रहा होगा तारीफ करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं, क्योंकि उसके इफेक्ट्स काफी डिवास्टेटिंग होते हैं, ठीक है। यस मोइज, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके नाउ very simple, how do second last line and last line relate to entire passage। बोल रहा है ये दोनों लाइंस एंटायर पैसेज से कैसे रिलेटेड है, व्हाट इज ऑथर डूइंग हियर, कैसे रिलेटेड है। second last line and last line, yes Divya, correct।
सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन पूरे पैराग्राफ से कैसे रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सेकेंड लास्ट लाइन एंड लास्ट लाइन रिलेटेड? यस, दिव्या का सही है, निकिता का सही है. Second last line and last line related to the entire passage. What role are they playing? Yes, Devashish sahi hai. Yeah. So second line and second last line and the last line are contradicting. The contrast provide kar raha hai to the earlier opinion. They are acting as a contrasting points to the earlier opinion. ठीक है ना, वही तो कर रहा है कि अपलोड नहीं करना चाहिए, उसका कारण दिया है. यस, ओके. सो मेरे पास और भी एक्सरसाइजेस थी और मैं चाहता था कंटिन्यू, बट देयर सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस क्लास. मे बी आई डोंट नो, मेरी फ्राइडे को करते हैं. मैं आपको मैसेज करता हूँ थर्सडे या फ्राइडे को, कोशिश करता हूँ इफ आई गेट 1 hour टाइम ऑन दोस 2 days, तो मैं एक दिन पहले मैसेज कर दूंगा, सुबह मैसेज कर दूंगा यार. ठीक है. So Thursday or Friday we will continue with this class because now it is creating technical problem for many. So how did you find it? मतलब I think कि maybe जो मैं 100% रिजल्ट चाह रहा था वो 70% ही हो पाया है अभी मेरे हिसाब से, but I don't know what you feel like. But did you get sense of कि कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब this could be another way to approach the RCs. राइट. सो अभी क्या तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप में अगर देखोगे ना, तो मैंने एक पैसेज भेजा है. ठीक है, ये पैसेज से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दूंगा. प्लीज इसको टेक इट एज एन असाइनमेंट. ठीक है, टेक इट एज एन असाइनमेंट. और इस पैसेज को मैं क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा और आज शाम तक के वो असाइनमेंट टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर दो. ठीक है, और द वे यू वांटेड, बट एक ही जगह रहेगा तो मेरे लिए चेक करना आसान होगा. Right, so there is one passage that is given. I will give you 3-4 questions, 3-4 things to do around it. Please वो मुझे आप भेज दीजिएगा, ग्रुप में ही भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ओके. So I am ending it here.